Yes, 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 you're audible. Yes, sir. Yes, yes. A very good evening to all. Myself, Anirudh Mohanty. I work as the program officer for NIBOSH qualifications. So, as officer was informing that he's having some glitches in his system or in his connectivity, I'll be taking over the session. And yes, No, welcome. it's okay. It's okay, Anirudh. It's okay, Anirudh. Let me start with an issue. I'll just wrap up as soon as possible. Right? No issue. Not an issue. So Yeah. I'm transferring the share screen to you, sir. You can share your screen. Yeah, already I'm sharing the screen, Anirudh. Yeah. Thank you so much. Thank you. So, once again, a warm welcome to everyone. मेरा नाम अर्पित कानूनगो है. I work as an approved tutor for NIBOSH IGC for Environ Consulting Private Limited since last 3.5 years. And about my background, before we come into the we talk about our organization, I'll just introduce myself. And I'm also the lead auditor in ISO 45001. My academic qualifications, I'm BTech Triple E, and I have done PDI's post diploma in industrial safety as well. I have done EOSH managing safely. I have done NIBOSH IGC and other qualifications as well. And total, I have 9 years of experience in the field of environment, health, and safety, and I have been teaching NIBOSH IGC since last 2.5 years. So I'll be the course facilitator, or I can say the tutor for you for this particular course. About Environ. So Environ is a silver learning partner of NIBOSH. Environ started in 2014 as an organization or an institution who was delivering training programs across India and outside of India as well in the field of environment, health, and safety. And since 2020, we have started delivering NIBOSH IGC as well. So welcome to Environ. So this session, this demo session, or we can say this pre-course guidance session, what is this session about? आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया है? ताकि आप लोगों को इस क्वालिफिकेशन के बारे में, इस निबोस आईजीसी के जो सर्टिफिकेशन है, इसके बारे में पता चले. आपका क्या ऑब्लिगेशंस हैं, आपको क्या करना है. ये जो एनविरॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो आपका लर्निंग पार्टनर हो सकता है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे आपके लिए, राइट? और हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस सेशन, कितना ड्यूरेशन में कवर करेंगे, इस निबोस आईजीसी का जो क्राइटेरियाज है, क्या क्या है, उस क्वालिफिकेशन का जो गाइड है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन, राइट? ऑल्सो अनिरुद्ध विल बी डिस्कसिंग, अनिरुद्ध विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट योर ऑब्लिगेशंस. आप लोगों को एज अ लर्नर, अगर आप ज्वाइन करेंगे दिस कोर्स विद अस, देन व्हाट विल बी योर ऑब्लिगेशंस, आप लोगों को क्या क्या करना है, ये भी गाइड किया जाएगा. आपके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आपको क्या फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसीज हैं, that Anirudh will explain in detail. So I will begin this session. I will just give you a brief about this NIBOSH IGC course. सबको पता है what is this course? Everybody is aware of this NIBOSH International General Certificate? Yes, sir. Okay. So बताएंगे इसके बारे में कुछ भी, जो भी पता है आप लोगों को, प्लीज, जो भी पता है आपको. Anyone? सर इसका निबोस, आई मीन व्हाट इज निबोस, निबोस क्या होता है उसके बारे में बताना है सर. निबोस आईजीसी जो आप कोर्स करने वाले हैं, आप जिस कोर्स के लिए एनरोल करेंगे ना, दिस निबोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है आप लोगों को या फिर नहीं है, पूरा ब्लैंक है आप लोगों को? यस सर, नॉलेज है सर. क्या पता है, बताइए. निबोस सर, निबोस इज एन ऑन एज एन यूके बेस्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके. या सर, यह एक तरह का सर हेल्थ एंड सेफ्टी का सर ये कोर्स है, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में सर स्टडी करते हैं सर. NIBOSH is an international accreditation body who offers certifications and qualifications in the field of occupational health and safety. And this NIBOSH के बहुत सारे courses होते हैं, IGC, PSM, MRRA, diploma, there are several courses of NIBOSH. हम जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, that is NIBOSH इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, NIBOSH IGC के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका लेवल 3 क्वालिफिकेशन है.
जो आपका एक बेसिक लेवल क्वालिफिकेशन है सेफ्टी में, अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, ये आपके प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। या फिर आप सेफ्टी में एंटर करना चाहते हैं, न्यूली आप एंटर करना चाहते हैं, तो तब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी, बिकॉज निबोस आईजीसी का जो रिक्वायरमेंट है अक्रॉस ग्लोब बहुत ज्यादा है। निबोस के जो लर्निंग पार्टनर्स हैं लाइक अस, वी आर प्रोवाइडिंग we have also provided training programs on Nibos IGC across India and outside of India as well. So Nibos IGC क्या होता है पहले डिस्कस करने वाले हैं। What is Nibos IGC? Nibos IGC जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। We'll talk about this course, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको जो फॉलो करना है वो डिटेल में आपको अनिरुद्ध जी बताएंगे, right? He'll be explaining about those things. This is the agenda of our today's session, pre-course guidance session. तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लर्निंग पार्टनर के बारे में बता दिया है कि एनविरॉन, लाइक एनविरॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, इट इज द लर्निंग पार्टनर ऑफ निबोस। ये निबोस का डायरेक्ट लर्निंग पार्टनर है, और वी कैन से वी आर द सिल्वर लर्निंग पार्टनर, राइट? वी आर द सिल्वर लर्निंग पार्टनर ऑफ निबोस, राइट? आवर accreditation number is Sir, 1580. Yes, sir. sir, what is the silver learning partner? सर देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स, लाइक निबोस क्या करता है, निबोस के जो भी लर्निंग पार्टनर्स होते हैं वो उनको ग्रेड करता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो हम वहाँ पे सिल्वर पे हैं अभी, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर गोल्ड, और हमें बहुत जल्द गोल्ड मिलने वाला है। तो लाइक स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से, पास रेट के हिसाब से, राइट, वो कैसे अपने लर्नर्स को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उनको गाइडेंस दे रहे हैं, हाउ दे आर सपोर्टिंग देयर लर्नर्स, हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर पॉलिसीज, प्रोसीडियर्स, एवरीथिंग उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने जब 2020 में स्टार्ट किया था तो हमें डायरेक्टली सिल्वर मिला था, राइट, ब्रॉन्ज नहीं मिला था। ब्रॉन्ज वो बेसिक लेवल होता है, हमें सिल्वर लेवल मिला था, एंड सून वी आर गोइंग टू गेट गोल्ड नाउ। हाँ, तो अबाउट दिस कोर्स विल टॉक अबाउट, ऑलरेडी मैंने बताया एनविरॉन के बारे में आपको। एनविरॉन जो है, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था 2014 में, राइट। और हमने जब स्टार्ट किया था, हमने इनिशियली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए थे अक्रॉस इंडिया, और इंडिया के बाहर भी हमने प्रोवाइड किए हैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। और हमने यस सर, बोलिए, बोलना चाहते हैं, बताइए। विकास सिंह, या विकास सिंह से बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? Yes, I'm just giving some information regarding your academic qualifications and experience. Your voice is not clearly audible, sir. Could you please be a little louder? Yes, hello. Yeah. You just pass your information regarding your academic qualifications and your experience. Anirudh, is it clear to you? But oh, I'm not able to hear. Sir, I think you're having some network issues. You can use Yes, the. sir. Yes, sir. His voice is breaking, sir. okay, Vikas sir, do one thing ना, sir, can you please use a chat box? तो मैं पढ़ लूंगा, तो मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, please. Right? Sir? Okay. Yeah, please. Thank you. Okay. Okay. So, Environ started as a learning partner of NIBOS. We received the silver accreditation from NIBOS qualification in 2020, and since then, and we have been continuously delivering NIBOS courses. NIBOS की हमारे पास बहुत सारे courses हैं, IGC है, MRRA है, PSM है, and we are also going to get diploma very soon, right? From where it belongs to. Okay, we belong from Odisha. We belong from Odisha, sir. Right, we belong from Odisha, and our headquarters is in Cuttack. Right. Okay. So since then, since 2020, हमने जो हमारा पहला बैच शुरू किया था, जब जून 2020 में हमने जो पहला बैच शुरू किया था, उसका जो पहला एग्जाम हुआ था, उसमें हमने 100% रिजल्ट अचीव किया था, और टिल डेट हमारा जो पासिंग परसेंटेज है, हमारा 76% पासिंग एवरेज है IZ1 में, और 95% पासिंग एवरेज है आपका IZ2 में। निबोस आईजीसी के 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे 2 यूनिट्स हैं, IZ1 एंड IZ2, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने ये कोर्स शुरू किया 2020 में, और अभी तक हम
हमारा जो पासिंग परसेंटेज है ग्लोबली, अगर आप चेक करेंगे ग्लोबली जो पासिंग परसेंटेज निबोस आईजीसी का अराउंड 50 आ रहा है, लेकिन हमारा जो पासिंग एवरेज है दैट इज अराउंड 75 और 76 इन IG1 और IG2 में 95% हमारा पासिंग एवरेज परसेंटेज। सो अबाउट निबोस आईजीसी, ये जो आप निबोस आईजीसी कोर्स करने वाले हैं ये आपका लेवल 3 क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन कोर्स है आपका, जिसमें कि आप ये समझ पाएंगे कि एक वर्कप्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्यों मैनेज करना चाहिए और कौन मैनेज करेगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। विल दैट दिस कोर्स इज इन वेरी डिटेल अबाउट हाउ टू मैनेज एज अ मैनेजर। आप एक मैनेजर हैं, आप अपने वर्कप्लेस में आप सेफ्टी मैनेजर हैं, आप सेफ्टी एडवाइजर हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, आप अपने वर्कप्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और एक टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन सबका हेल्थ एंड सेफ्टी के टुवर्ड्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो लोग क्या करना चाहिए। दिस थिंग्स आर कंपाइल्ड इन दिस टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिसी, लाइक वहां पे रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, राइट, everything, accident investigation, inspection, audit, ये सब कुछ कवर किया गया। The audio is not Right. clear, sir. तो निबोस आईजीसी जो है इसके 2 यूनिट्स होते हैं। यूनिट वन जो इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Now clear. Okay. So this NIBOS IGC has 2 units, unit IG1 and IG2. There are 2 units. IG1 क्या है आपका? ये जो IG1 है ये आपका थियरी पेपर है, ये आपका थियरी पेपर है जिसमें आपको 100 मार्क्स का एग्जाम अपीयर करना होता है। थियरी पेपर में आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको उस सिनेरियो को पढ़ना है, समझना है और अपने आंसर में उस सिनेरियो के हिसाब से आंसर ड्राफ्ट करने हैं। कैसे आंसर ड्राफ्ट करना है, सिनेरियो कैसे समझना है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग द क्लासेस। वी विल ड्राफ्ट द आंसर्स लाइव इन द क्लास टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक आंसर ड्राफ्ट कैसे करना होता है, एक सिनेरियो को कैसे समझना होता है। रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाएगा आपको, आप लोग जो फेस करते हैं रियल लाइफ में वर्क प्लेस में, सिमिलर टाइप के सिनेरियोज आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए क्लासेस में। और आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, एक रियल लाइफ सिनेरियो, उसमें आपका भी रोल डिफाइन किया जाएगा कि आपका रोल क्या है उसमें, और उस सिनेरियो के हिसाब से आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क का टास्क रहेगा, आपको उन सिनेरियो के हिसाब से आपको आंसर ड्राफ्ट करना है और 24 आवर्स के अंदर वो आपका IG1 का जो एग्जाम है, थियरी पेपर है, वो कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसमें कि आपको ये 45 स्कोर करना होता है पास करने के लिए। IG1 को पास करने के लिए आपको 45 मार्क्स स्कोर करना होता है। IG1 के भी ग्रेड्स हैं, ये जो थियरी पेपर है आपका इसके भी ग्रेड्स हैं, उसका क्या होता है, पास, क्रेडिट एंड डिस्टिंक्शन। अगर आप 45 से 64 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप पास कहलाएंगे। अगर आप 65 या फिर उससे ज्यादा लाइक 74 तक स्कोर करते हैं, 65 से 74 तक अगर स्कोर करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि यू हैव पास्ड दिस क्वालिफिकेशन विथ क्रेडिट। अगर आपने IG1 75 से ज्यादा स्कोर किया है तो वहां पे लिखा रहेगा डिस्टिंक्शन, जैसे कि हमारे स्कूल्स में भी होते थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, वैसा ही है, राइट। अगर पास कर रहे हैं 45 से तो पास है, अगर 65 स्कोर कर रहे हैं तो 74 तो क्रेडिट है, 75 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो डिस्टिंक्शन है। सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा आपका अगर आप IG1 में स्कोर कर रहे हैं तो। लेकिन सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा, जब आप IG1 के साथ साथ IG2 भी क्लियर कर रहे हैं। IG2 क्या है आपका, IG2 आपका एक प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाना है, आपको एक जनरल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाना है। आप अपने वर्क प्लेस में हीरा बनाया होगा, JSA JHA बनाए होंगे आप लोगों ने, आपको पता है कि आपके वर्क प्लेस में क्या क्या हजार्ड्स अवेलेबल हैं, कैसे एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाना होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे निबोस का खुद का कुछ क्राइटेरिया है, आप निबोस का एक फॉर्मेट है IG2 रिपोर्ट बनाने का, आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना असेसमेंट रिपोर्ट बनाने हैं, राइट। और
इसमें जो पास करने के लिए आपको 100 से 100 स्कोर करना है, इसमें कोई मिडिल मार्किंग नहीं है, राइट। IZ2 का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करने रहेंगे। निबोस ने एक IZ2 का गाइडेंस बुक दिया हुआ है कि एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को कैसे बनाना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर्स हैं, वो दिया गया है। आपको वो क्लास के दौरान भी समझाया जाएगा कि एक रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है, ठीक है। और आपको सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करके रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे तो आप इजिली पास कर सकते हैं। अभी तक का जो हमारा IZ2 का पासिंग परसेंटेज है, एवरेज 95% है। अभी पिछले वाले OBE में 100% रिजल्ट हमने अचीव किया था, क्योंकि वी टोटली आप लोग का जो भी डाउट्स रहता है आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। वी एज अ ट्यूटर टीम, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू गिव यू 24 आवर्स 24/7 गाइडेंस सपोर्ट, ठीक है। जब भी आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं आप पूछ सकते हैं। वी कैन क्लैरिफाई ओवर व्हाट्सएप, ओवर क्लासरूम, ओवर ईमेल, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको गाइड किया जाएगा कि आपको IZ2 का जो रिपोर्ट है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, कैसे तैयार करना है, क्या होते हैं मिनिमम क्राइटेरिया, राइट। 24 hours for IZ1. Can you please explain in detail? Yeah, sure. See, IZ1, IZ1 जो आपका थियरी पेपर है, राइट, इट इज थियरी पेपर। एग्जाम आपका हर महीने होता है। अभी IZ1 में आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, रियल लाइफ सिनेरियो विल बी गिवन टू यू। आई विल शो यू वन एग्जांपल। मैं आपको एक सिनेरियो दिखाऊंगा, ठीक है। वहां पे आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और वहां पे उसको बेस करके कुछ टास्क दिए जाएंगे आपको। 6, 7, 8, 10 टास्क हो सकते हैं, लेकिन टोटल आपका 100 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर में आपका एक सिनेरियो रहेगा और कुछ टास्क रहेंगे, और आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। निबोस विल प्रोवाइड यू 24 आवर्स टाइम टू कंप्लीट दिस 100 मार्क थियरी पेपर, राइट सर। फॉर एग्जाम्पल आज एग्जाम है, आज एग्जाम शुरू हुआ, आज 3:30 PM को इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 PM को एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो कल 3:30 PM तक आपके पास टाइम है ये आंसर कंप्लीट करके सबमिट करने का। ये आपका है ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसको कहते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। मतलब आप जो एग्जाम लिखेंगे, आप किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, गूगल से, HSC वेबसाइट से, ILO वेबसाइट से, आपके ट्रेनिंग मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से, स्टडी बुक से, कहीं से भी रेफरेंस लेके समझ के अपने ओन लैंग्वेज में आंसर बना सकते हैं, लेकिन कहीं से भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, इंटरनेट से आपने कुछ सर्च किया और आपने उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो आपका माल प्रैक्टिस में आ जाएगा। निबोस के पॉलिसी के हिसाब से आप हर एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रेफरेंस ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो अपने खुद के लैंग्वेज में लिखेंगे। आपने जो समझा उसको अपने खुद के लैंग्वेज से ड्राफ्ट करना होगा। सर ओनली समझ के हम अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा? यस सर। एंड वो कैसे लिखना है, एक सिनेरियो को समझना है, आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी दिया जाएगा, आपको समझना है बिट बाय बिट इस कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पॉजिटिव कल्चर है, क्या नेगेटिव कल्चर है, राइट। वहां पे कैसे परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको समझना है। और डिफरेंट टास्क आपको दिए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। हेलो हेलो जी बताएं आपका। सर जी सॉरी, कौन बोल रहे हैं सर सर? हाउ टू राइट सर हाउ टू राइट आंसर How to write the answer that will be discussed in the class only. अभी मैं आपको, अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है आपको, मैं अभी आपको अगर सिनेरियो समझाऊंगा कैसे लिखना है, समझाऊंगा तो आप नहीं लिख पाएंगे ना, राइट। अभी एग्जाम में कैसे अपियर करना है, अभी आप जब ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव जॉइंड द क्लास, आपको डेली जो टॉपिक कवर किया जाएगा उस टॉपिक के हिसाब से आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, सिनेरियो बेस्ड टास्क, जो पहले से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, आपको कंप्लीट करने हैं, डेली प्रैक्टिस करना है आपको। और कैसे लिखना है आंसर, रेगुलर बेसिस में क्लासरूम में आपके ट्यूटर्स इंक्लूडिंग मी, आई एम द ट्यूटर हियर, आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर। क्या प्रिंसिपल्स है निबोस के, क्या क्राइटेरिया है, कैसे एक आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं सिनेरियो को, एक टास्क को कैसे हम डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट में समझ सकते हैं,
That we'll discuss in detail during the class only. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है आंसर लिखेंगे। विकास जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुड यू प्लीज यूज योर चैट बॉक्स इफ पॉसिबल। चैट बॉक्स यूज कर लेंगे एक बार, आपका वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, तो एक मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकेंड। ये आपका गाइड बुक है, ठीक है, ये आपका निबोस का, सॉरी, दिस इज द गाइडेंस बुक ऑफ निबोस। दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे आपको आपका सिलेबस दिया गया है। आपके टोटल क्या है, 2 यूनिट्स हैं, IG1 और IG2, ठीक है, IG1 और IG2। IG1 में आपके 4 एलिमेंट्स हैं, 4 सब एलिमेंट्स हैं। टोटल आपके 11 एलिमेंट्स हैं, मतलब 11 चैप्टर्स हैं कवर करने के लिए। आपका निबोस IGC में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहले 4 चैप्टर्स हैं IG1 के, जो आपका थियरी पेपर, जो क्लासेस में कवर किए जाएंगे इन डिटेल्ड, राइट। सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट को हर एक टॉपिक से लिंक करवाएंगे हम, ठीक है। एंड द IG2 में आपका एलिमेंट 5 से एलिमेंट 11 तक है। कुछ हजार्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। What is physical hazard? What is chemical hazard? What could the control measures? How to control it? Right? Risk level calculations. वो आपके IG2 में आएगा, ठीक है। ये जो आपका IG1 का एग्जाम है, ये आपका 24 आवर्स का होगा, जिससे मैंने बताया आपको। उसमें आपको बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ओके। Yes, exactly. It depends on the questions and the scenario. क्वेश्चन का मतलब क्या बन रहा है और सिनेरियो में क्या एविडेंस है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से सिनेरियो से एविडेंस गैदर करना है और आंसर में ड्राफ्ट करना है, राइट। हाँ, अभी आऊंगा क्लोजिंग इंटरव्यू, आ रहा हूँ 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका असेसमेंट होता है 3 वे में होता है। आपने IG1 का एग्जाम दिया, ठीक है, IG2 का पेपर सबमिट कर दिया, रिपोर्ट सबमिट कर दिया आपने, देन आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू होता है। क्लोजिंग इंटरव्यू किसके बेसिस पे होता है, आपके IG1 के पेपर के बेसिस पे होता है, ठीक है। जो आपका थियरी पेपर का एग्जाम हुआ, उसके बेसिस पे आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू लिया जाएगा, ये जानने के लिए कि वो जो आंसर लिखा गया है आपने खुद लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, कोई किसी का भी हेल्प ले सकता है, लिख सकता है, लिखवा सकता है, कहीं से भी कॉपी कर सकता है। वो जानने, लर्नर का अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, उसका जो अप्रोच कैसा था, उसने खुद लिखा है कि नहीं लिखा है, उसका ID वेरिफिकेशन हो किया जाएगा, राइट। उसके बेसिस पे वहां पे रिजल्ट वहां पे फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर वहां पे क्लोजिंग इंटरव्यू के दौरान अगर हमने वहां पे ये समझ लिया कि लर्नर ने खुद नहीं लिखा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको बोल नहीं पा रहा है आंसर, देन हम वहां पे निबोस को रिपोर्ट कर देते हैं कि दिस लर्नर इज नॉट एक्यूरेटली आंसरिंग, he might have taken any help or he has not done any kind of ethical way, उसने कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस किया है या फिर माल प्रैक्टिस किया है, तो निबोस वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा और आपके अगेंस्ट में एक्शंस ले सकता है, बैन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप कर रहे हैं एथिकली करिएगा। अनएथिकल प्रैक्टिस नोबडी विल एक्सेप्ट, नॉट इवन मी, ठीक है। सो एज अ सेफ्टी ऑफिसर, आप सब लोग सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करना, इम्प्रूव करना। तो आप इस कोर्स को अगर लॉगिन आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये ध्यान पे रख के आइएगा कि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने हैं, जमकर प्रैक्टिस करने हैं। विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान पे रखिएगा। वी आर गोइंग टू बी द गोल्ड पार्टनर, वी आर द ऑलरेडी सिल्वर पार्टनर। हम अपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे कैजुअली ले जाएंगे आप और वहां पे बिना क्लास अटेंड नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिनेरियो असेसमेंट्स, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, देन यू आर नॉट वेलकम्ड, राइट, यू पीपल आर नॉट वेलकम। आप वहां पे किसी और इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही में जानना चाहते हैं कि सिलेबस के बारे में, कोर्स के बारे में प्रॉपर्ली अपने दम पे पास होना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम, राइट। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक
understand the process and how to qualify the examination will be completely guiding you, right? So we will not entertain any kind of unethical practice from anybody, right? Okay. Who are people who conduct the closing interview? Sir, we do the closing interview, right? हम लोग वहां पे लेते हैं closing interview. The tutor team, we will conduct the closing interview, और उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो भेजी जाती है निबोस को वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है? निबोस हर एक वीडियो को रिकॉर्डिंग को वेरीफाई करता है कि सही से वहां पे लिया गया कि नहीं लिया गया क्लोजिंग इंटरव्यू, ठीक है? तो उस केस में हम कहीं पे भी अनएथिकल नहीं हो पाएंगे, हमें प्रॉपरली एथिकल वे में जाना है। लैंग्वेज बिल्कुल मैटर करता है। सर यस सर। सर ये क्लोजिंग इंटरव्यू कब होता है? IZ1 एग्जाम्स के 7 डेज के अंदर ओके आपको शेड्यूल जाएगा, आपको खुद स्लॉट बुक करना है आपका, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप खुद का स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक? हाँ, यस, लैंग्वेज मैटर करता है। इंग्लिश फ्लुएंसी चाहिए, आपका जो इंग्लिश लेवल है वो मिनिमम 60% होना चाहिए, लेवल 3 तो होना चाहिए जनरली, ठीक है? अगर आपका इंग्लिश पुअर है देन यू शुड इम्प्रूव इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? अदर विदाउट प्रॉपर इंग्लिश यू कैन नॉट ड्राफ्ट द आंसर प्रॉपर्ली। आप सिनेरियो समझ नहीं पाएंगे, टास्क का मतलब समझ नहीं पाएंगे, तो आंसर क्या ड्राफ्ट करेंगे? सो यू मस्ट हैव बेसिक इंग्लिश नॉलेज, you must be fluent, not that level of fluency, but you must have that ability to discuss, to write something जो समझ में आए, ठीक है? वैसा चलेगा, कोई इशू नहीं है। 60% मिनिमम इंग्लिश क्वालिफिकेशन या फिर वहां पे लेवल होना चाहिए। that is a bar that we have set, हमने वो सेट किया है। तो आपने अगर एक बार रजिस्टर किया तो आपके पास 5 साल का टाइम है, आप 5 साल के अंदर कभी भी इस सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। IZ1 और IZ2 दोनों को कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। वंस यू हैव रजिस्टर्ड तो आपके पास 5 साल का टाइम है टू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन कोर्स, ठीक है? ठीक, तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे 2 होते हैं यूनिट्स इसके, IZ1 एंड IZ2। IZ1 इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। एक हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्यों मैनेज करना चाहिए, कौन मैनेज करेगा, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपका थ्योरी पेपर है IZ1। नो हिडन चार्जेस सर, दैट योर कोर्स एडवाइजर्स विल बी हेल्पिंग यू आउट, देयर आर नो हिडन चार्जेस इन दिस। अगर आपने एग्जाम दिया IZ1 और IZ2 बोथ, मान लेते हैं आपका IZ1 रेफर हो गया या फिर आप IZ1 में फेल हो गए और IZ2 आपका पास हो गया, तो दोबारा आपको IZ2 देना नहीं चाहिए, आपको IZ2 देना नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा IZ1 में रीसेटिंग करना होगा, एग्जामिनेशन फीस आपको भरना होगा और वहां पे अटेंड करना होगा IZ1 का एग्जाम दोबारा। सिमिलरली अगर आप IZ1 में पास हो जाते हैं और IZ2 में आपका रेफर हो जाता है, देन आप IZ2 को आप रीसेट कर सकते हैं, दोबारा आप IZ2 को अपेयर करेंगे, IZ1 आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया, ठीक है? अगर आप चाहें तो IZ1 को 1 महीने में दे सकते हैं एग्जाम, नेक्स्ट महीने में आप IZ2 दे सकते हैं, या फिर पहले IZ2 दे के फिर नेक्स्ट मंथ पे IZ1 दे सकते हैं। अगर आपका टाइम में कुछ मतलब टाइम इज ए कंस्ट्रेंट, आपको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा है आपको, तो 1 by 1 आप एग्जाम दे सकते हैं। IZ1 आपने अभी क्लास अटेंड किया आपने IZ1 का, तो आप नेक्स्ट मंथ में IZ1 का एग्जाम अपियर कर सकते हैं, फिर अगर टाइम लेके नेक्स्ट मंथ पे IZ2 दे सकते हैं। अगर आपको हड़बड़ी है, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए 2 महीने के 3 महीने के अंदर, देन यू कैन अटेंड दिस क्लास, आप इस बैच में अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ, या फिर उसके नेक्स्ट मंथ आप दोनों पेपर आप अपियर कर सकते हैं, ठीक है? जो भी एग्जाम देना चाहते हैं हड़बड़ी में मत दीजिएगा एग्जाम बिल्कुल भी, उससे कुछ क्राइटेरिया होते हैं एग्जाम देने के भी। एग्जाम के लिए आप कब एलिजिबल होंगे उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए, राइट? आपका जो असेसमेंट है, डेली जो आपको टास्क दिया जाएगा वो आपका 100% होना चाहिए। एक मॉक एग्जाम हम लेते हैं, जैसे निबोस एक ओपन बुक एग्जामिनेशन करता है IZ1 का 24 आवर्स का, वैसा हम भी एक एग्जामिनेशन करते हैं, मॉक एग्जामिनेशन। ये एक क्राइटेरिया है जो कि आपको करना ही करना है। इसके अलावा इसको अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप अपियर भी नहीं हो पाएंगे, आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ठीक है? वो ध्यान रखिएगा आप। हाँ,
तो तो यूनिट IG1 आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है और IG2 आपका प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट है। ठीक है। तो आपका सर जो जी मॉक सर, टेस्ट में क्या होता है सर? मॉक मॉक टेस्ट में मॉक जैसे टेस्ट में कि सर? जैसे निबोस आपका एग्जाम लेगा ना, सिनेरियो बेस्ड जी। एग्जामिनेशन, वैसा हम भी यस एक सर। आपको एक नया सिनेरियो देंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा, जब भी पढ़ा नहीं होगा। एक नया सिनेरियो देंगे आपको। हम्म। कोर्स खत्म होने के बाद जी। IG1 का आपका क्लास खत्म हुआ, आपने समझ लिया, यस सर। आपने बहुत सारे सिनेरियोज प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं, कुछ समझ में आ गया है, आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया है। ठीक है। तब हम आपका एक रियल यस। टेस्ट लेते हैं। राइट, मेन एग्जाम से बैठने से पहले आपका एक रियल परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, वो जानने के लिए हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं। राइट, उसमें भी हम आपको एक सिनेरियो यस देंगे, सर। उसमें भी आपको हम एक सिनेरियो देंगे जिसमें कि आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपको 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करके हमें भेजना है। हम उसको रिव्यू करेंगे, कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, यस सर। आपका मार्क क्या है, आपको दिया जाएगा। तो वहां पे आपको क्लियर पिक्चर आएगा कि वहां पे आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एग्जामिनेशन में वो आपको हेल्प करेगा। ये मॉक टेस्ट, असाइनमेंट, ये क्यों जरूरी है, निबोस ने इसको मैंडेटरी क्यों किया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये ओपन बुक एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है। बिना प्रैक्टिस से कोई पास नहीं हुआ आज तक, नोबडी पास्ड। इवन एज पर माय एक्सपीरियंस यस फॉर सर। लास्ट 3 इयर्स आई एम टीचिंग, 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस बंदे भी वहां पे 13-20 ऐसा मार्क्स स्कोर करते हैं। और जो फ्रेशर है, जिसने रेगुलरली क्लास अटेंड किया, प्रैक्टिस किया, उस कॉन्सेप्ट को समझा और मॉक टेस्ट दिया, मतलब 24 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं एग्जाम के दौरान। उस टाइम मैनेजमेंट को भी कैसे, वहां पे टाइम को कैसे मैनेज करना है वो भी सीखना होगा आपको। वो मॉक टेस्ट ही आपको हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट यस देंगे तब आप टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए वो भी समझ पाएंगे। तो फ्रेशर बंदा भी वहां पे 75 स्कोर कर रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है, 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस बंदे हैं GM लेवल के भी, वो फेल हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए कुछ ही नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। जो पढ़ रहा है उसके लिए ईजी है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं समझा उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि निबोस का जो यस। स्टैंडर्ड है अब उन्होंने ऐसे मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि उनका चेकिंग क्राइटेरिया बहुत ही टफ होता है। चेकिंग क्राइटेरिया इंग्लिश, वहां पे लिंकिंग, ये सब चेक करते हैं, वर्ड काउंट्स भी चेक होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं क्राइटेरिया जो आपको क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, IG1 IG1 को पास करने के लिए आपको 45 मार्क्स चाहिए। अगर आप 45 से 64 स्कोर कर रहे हैं तो पास कहलाएंगे आप। अगर आप IG1 में 65 से 74 स्कोर कर रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा क्रेडिट। अगर आप 75 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो डिस्टिंक्शन। ठीक है, सर क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है सर? ग्रेड होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता था ना स्कूल में, पता है? यस वैसा सर। ही है। 75 आप मान के चले, 75 या फिर उससे ज्यादा आप स्कोर कर रहे हैं IG1 में, तो आपका फर्स्ट डिवीजन है। तो आपका, आप जब इंटरव्यू यस में सर। जाएंगे, किसी किसी कंपनी में आप इंटरव्यू में बैठेंगे, तो ये सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा। आपने डिस्टिंक्शन से पास किया है तो वहाँ उसका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, यस सर। ये आपका मान लीजिए ये आपका सेकंड डिवीजन है, क्रेडिट 65 या फिर 74 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट कहलाएगा। या फिर आपका पास होता है 45 मार्क्स से। ठीक है, एक्सक्यूज मी ओके सर। यस सर, यू कैन एक्सटेंड। अगर सर आपने अभी रजिस्टर किया तो 5 साल के अंदर आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। राइट कुमार सर, अगर आपने अभी रजिस्टर किया तो आप 5 साल के अंदर कभी भी एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। ठीक है, सर ग्रामेटिकल एरर भी चेक होता है क्या ये सर? सॉरी। सर ये जो आंसर हम लोग IG1 में आंसर हम लोग लिखते हैं, जी तो उसमें ग्रामेटिकल एरर भी का नंबर कटता है क्या नहीं, ग्रामेर? वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रामर मिस्टेक रहेगा तो वो जो मतलब निकल के आएगा आंसर का, वो तो गलत निकल जाएगा ना सर। राइट, यस सर, यस सर, तो वहां यस पे सर। जो एग्जामिनर चेक कर रहा है आपका पेपर, वो समझ नहीं पाएगा तो उसे मार्क नहीं देगा आपको। तो वहां पे ऑब्वियसली ग्रामर का वहां पे कुछ ना कुछ, देर इज सम पार्ट ऑफ ग्रामर रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, ओके।
आपको आपका लिखने का जो वे है वो सही होना चाहिए। वो ग्रेजुअली जब प्रैक्टिस करेंगे आप आंसर बनाना, तो ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होते हुए जाएगा। जो 20 दिन का क्लास रहेगा हमारा, हर दिन आपका सिनेरियो असेसमेंट प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ओके सिनेरियो दिए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी दिए जाएंगे, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा और आपको टास्क अपीयर करने होंगे। हाँ अनिरुद्ध, यू आर सेइंग समथिंग, प्लीज गो अहेड। Yes, actually, Mr. Omar has asked the duration of the examination. Basically, sir, once you register with us, you have to give your first attempt within 12 months of registration. तो अगर 12 महीने के भीतर अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। हाँ, दिस इज आल्सो वन क्राइटेरिया। यस यस यस। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उस हिसाब से अगर आप वंस कोर्स में ज्वाइन करते हैं और क्लासेस अटेंड करते हैं तो ज्वाइन करने के 12 मंथ्स के भीतर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। एग्जाम Yes. एक बार अटेम्प्ट कर लिए, फिर अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपके तो पास आपके पास 5 साल का टाइम है। जी 5 जी साल का टाइम है रीसेट करने के लिए कभी भी। जी। उसके लिए सर पैसा भी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से पेड करना पड़ेगा। बीटेक का फीस होता है सर, ये जो आप कोर्स फीस भर रहे हैं उसमें एग्जामिनेशन फीस भी इंक्लूडेड होता है आप सर। आपने जो अभी कोर्स फीस भरा, यस उसमें आपका ट्यूटर फीस, जी। इंस्टीट्यूट का फीस, एग्जाम का फीस सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें कुछ हिडन चार्जेस नहीं है। अगर आप किसी में फेल हो रहे हैं तो उस यस सर। पेपर का ही आपको पैसा देना होगा नेक्स्ट, और क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है आपको। ठीक है, ठीक है। यस सर। एग्जाम में रीसीट करने के लिए तब आपको रजिस्ट्रेशन फीस देने होंगे। नो एक्स्ट्रा चार्जेस रिक्वायर्ड। उसके अलावा हम वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं, 1-to-1 मीटिंग्स रखते हैं, ताकि आपका आपका गैप आ गया, मान लेते हैं 2-3 महीने का गैप आ गया, तो वहाँ पे हम 1-to-1 मीटिंग्स एक्स्ट्रा क्लासेस हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, ताकि आपका थोड़ा रिवैम्प हो, थोड़ा रिविजन हो जाए। ठीक है। यस सर। हेलो यस सर। सर, क्या दोनों एग्जाम का अलग अलग फीस है और क्या फीस रहता है दोनों का, IG1 और IG2 का? सर दैट आई एम नॉट क्लियर अबाउट, इफ यू कुड कंसल्ट योर कोर्स एडवाइजर दैट विल बी मोर हेल्पफुल। अच्छा, नहीं मतलब मैं ये जस्ट ठीक है, वो मैं बात कर लूंगा। So क्या है that is दोनों का coming मतलब around डिफरेंट फीस होता है 15,000 to 16,000 something like that, according to वन पेपर का? sorry, one पेपर का 15 से 16 हजार का आता जी है सर। जी, वही समझना था बस मुझे। वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है मुझे ठीक पता नहीं है सर, लेकिन ये जो रेंज है इसके इस रेंज के अंदर आता है सर। ठीक है है। जी। Okay, so any questions about this syllabus, about this course? Yes sir, any exam, any यस सर। questions? बोलिए। सर वो जो IG1 पेपर का सर जो वो टाइमिंग है 24 आवर्स, सर वो मतलब कब से स्टार्ट रहेगा सर? वो अभी उसका टाइमिंग क्या है सर स्टार्ट होने का? ये डिपेंड करता है। अभी समर का जो टाइमिंग है यूके का टाइमिंग हिसाब से होता है। यूके का टाइमिंग में अभी यूके अभी वहाँ पे समर चल रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वहाँ पे 11 AM देता है, तो यहाँ पे इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 PM होता है, 4:30 PM होता है। वो चेंज होते रहता है, आपको इन्फॉर्म यस किया सर। जाएगा किस टाइम में एग्जाम किया जाएगा। ठीक है, विंटर यस में सर। उनका 9:30 में पेपर आता है, तो हमारे उस हिसाब से हमारा यहाँ पे 2 बजे या फिर 1:30 बजे जो टाइमिंग होता है, जो डिफरेंस होता है, आपको क्लियर किया जाएगा सर एग्जाम से पहले। ठीक है सर वो जो आप बोले हैं वो 4:30 में होगा सर, उसके बाद वो नाइट में भी नाइट नाइट तक सर 24 आवर्स देना पड़ेगा ना? यस सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाय ओके सर। जी बताएं। जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस सर। Okay, I am Ehsan. I want Okay. to know, sir, when will we start the real class of IG1? Anirudh, when is the class date? 8th or 9th? Scheduled from 8th of November. So 8th the of November. classes are on. So if you want to register, you can accordingly register So by speaking with your 8 तारीख को respective. क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं देन आप आज या कल कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज टॉक टू द Sir, कोर्स एडवाइजर्स। सीट्स कितने बाकी हैं बात कर लीजिएगा एक बार, उस हिसाब से आप कर सकते हैं sir, रजिस्टर। I have paid and I have also ऑलरेडी filled रजिस्टर्ड? the ऑलरेडी document. रजिस्टर्ड सर? Yes, ओके। yes.
No but I issue. did not get mail You'll confirmation mail receive, sir. yet. You'll receive tomorrow. You'll receive tomorrow positively. Don't Yes, worry about it. all the learners that have registered. My registration is receipt registration, sir. Will be late or will come on time? It would be Sir, done it- on time, sir. You would be receiving the confirmation mail tomorrow along with your receipt, and that confirmation mail would be having the link of the class and everything. So rest assured, tomorrow definitely you will be getting that from your respective course advisors. Receipt student also will get tomorrow, sir. Yes, sir. Yes, Tomorrow sir. would be the working day of the office. So once all the course advisors reach the office, they'll be sharing with you the confirmation mail by 1 p.m. Okay, thank you so much, sir. Sir, Any more questions? class timing will be 8:30 p.m. sir. 8:30 p.m. 8:30 to 8:30 p.m. to 10:30 p.m. Yeah, that Yes. might extend it to 11 also. 11 p.m. also. Depending Okay. on the pace, class coverage, interaction, इससे कभी कभी वैरी हो जाता है, कभी कभी 10:30 में हो जाता है कंप्लीट, कभी कभी 11 बज जाता है सर. ठीक है. हाँ. Okay, will be break or not Yeah, during there the will be break. class? Obviously there will be break in Yes. between. That you don't worry about it. ठीक है सर. ब्रेक मिलेगा सर Oh, आपको. okay, thank you so much, sir. Yeah. Yes, आशुतोष सर बताएं. Any questions regarding this IGC? Sir, before on that, I see the PPT. IGC 1 is 3 hours, IGC 2 is 5 hours, like that you showing, na? They're that, saying time? what Nibos is saying that you can complete answer drafting in 3 hours or 5 hours, Okay. but they are allowing 24 hours to understand the scenario, to interpret it well, to use the evidences, use the source of information and draft the answer. They're allowing us 24 hours time to complete the examination. So I'll show you one sample examination paper. So this is one previous examination paper. ये आपका अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है. यहाँ पे दिया गया है आपका गाइडेंस टू लर्नर्स. ये आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है. It is not invigilated and you are free to use any learning resources which you have access, like your course notes or a website, etc. आप ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है. आप बुक खोल के वहां पे रेफरेंस ले सकते हो. किसी भी कोर्स नोट्स का, किसी भी वेबसाइट का आप रेफरेंस लेके आंसर बना सकते हो. By submitting this completed assessment for marking, you are declaring it is entirely your own work. Knowingly claiming work to be own when it is someone else's work is malpractice, which carries several penalties. आप जब एग्जामिनेशन पेपर सबमिट करेंगे निबोस के पोर्टल में 24 आवर्स के बाद के अंदर, जब आप वहां पे आंसर पेपर सबमिट करेंगे निबोस के पोर्टल में, आपको एक डिक्लेरेशन आएगा कि आपने खुद आंसर बनाया है या नहीं बनाया है. आपको डिक्लेरेशन में क्लिक करना है. अगर आपने खुद नहीं बनाया है, आपने कॉपी किया है या फिर आपने किसी और का हेल्प लिया है बनाने के लिए और आप वहां पे डिक्लेयर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में कुछ पकड़ में आ रहा है आपका आंसर, दैट विल लीड टू माल प्रैक्टिस और वहां पे पेनाल्टीज भी लग सकती है. दिस मीन्स यू मस्ट नॉट कोलैबोरेट विथ और कॉपी वर्क फ्रॉम अदर्स. आप दूसरों के आंसर से कॉपी नहीं कर सकते. आपका आंसर मैच नहीं होना चाहिए. Neither should you cut and paste blocks of text from the internet or other sources. आप इंटरनेट से सर्च तो कर सकते हो लेकिन कहीं से कट पेस्ट नहीं कर सकते. आपको खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर देने हैं. This examination begins with a scenario to set the scene. You will then need to complete a series of tasks based on this scenario. तो वहां पे आपको एक दिया जाएगा सिनेरियो, एक रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाएगा आपको, और उसके बेसिस पे आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे. जो एलिमेंट 1 से एलिमेंट 4 है आपका IG1 का जो सिलेबस है, उसी के बीच में से क्वेश्चंस आपको आएंगे. ठीक है, कोई 17 मार्क का है, कोई 11 मार्क का है, कोई 20 मार्क का है, कोई 18 मार्क का है. ऐसा मिला के एलिमेंट 1 से एलिमेंट 4 तक सारे एलिमेंट्स कवर होके आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने. ठीक है, वहां पे जो भी आप आंसर बनाएंगे, आपका आंसर सिनारियो से लिंक होना चाहिए. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिनारियो, आपको सिनारियो के साथ लिंक करके आंसर बनाने हैं. ठीक है, और हर जितना भी मार्क है
उसके हिसाब से आपको आंसर ड्राफ्ट करना है, कैसा ड्राफ्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है, और वो आपको क्लास में बताया जाएगा। व्हाट आर द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ दिस निबोश क्वालिफिकेशन और दिस ओपन बुक एग्जामिनेशन, और क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपको क्लास के दौरान बताया जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ठीक है एग्जांपल ऑफ सर। सिनेरियो एंड यू विल बी गिवन सम टास्क। ये टास्क आपको 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। ओके सर, ये 24 आवर्स में मतलब वो 24 आवर्स में 3 आवर्स कानली एग्जाम लिखना पड़ता है, उतना है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 24 आवर्स आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते 24। हैं, राइट। 24 आवर्स आप ओके कैसे ओके यूटिलाइज सर। कर सकते हैं, यहाँ पे लिया हाँ, गया है। एग्जाम। सर आप अगर क्लास तक वेट करेंगे और प्रॉपरली समझ पाएंगे। सर यहाँ लिखा है अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। आप वहाँ पे 24 आवर्स के अंदर सिनेरियो पढ़ सकते हैं, एविडेंस निकाल सकते हैं, आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। हाउ टू यूटिलाइज द 24 आवर्स टाइम, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, राइट सर। दैट इज सर ओके yes सर, sir, थैंक यू। yes sir। सर कितना क्वेश्चन रहेगा सर इसमें ये डिपेंड IGC करता वन है, में ये से? वैरी कर सकता है, 6 7 8 9 10 आ सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन टोटल 100 मार्क्स का आएगा। यस सर। Excuse me, sir. यस सर। Approximately 3:30 p.m. will be start the exam in India. It will vary, sir. It will vary. It might be 3:30, it might be 4:30, sir. Okay, but past was 3:30 p.m. ठीक है सर, पिछला एग्जाम 3:30 में हुआ था। अभी अगर वहां पे आपका समर आएगा, समर में 4:30 आ जाएगा। ठीक है, अभी विंटर आएगा, Yes, विंटर yes. में आपका 1:30 आ जाएगा, 2:30 आ जाएगा। सो वो वैरी करता है यूके के टाइमिंग के साथ। उन्होंने कब टाइम सेट किया एग्जामिनेशन का, वो उन पे डिपेंड करता है सर। ठीक है। Okay, okay, definitely time zone will be different according the season and यस weather. यस। सो दिस इज अबाउट द कोर्स। और डिटेल में हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में इतना कवर किया जाएगा तो आपका सारा एग्जामिनेशन फीस दैट अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए सर 16,000 अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस हो सकता है। मैंने रेंज बताया 15 से 16,000 का आता है आपका एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, री एग्जाम का। दैट यू कैन कंसल्ट विद योर कोर्स एडवाइजर, दे आर द राइट पर्सन टू गाइड सर। आई एम द ट्यूटर हियर, राइट। So if anyone having any questions, please ask. Anirudh, over to you. You can proceed next. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Anybody having any questions, you can drop your questions on chat box. I'll definitely reply, or else Anirudh will get back to you. Yeah. Thank you, Anirudh. Thank you so much for explaining the course with so much accuracy, sir. And Yeah. I will be moving on to the learner terms and conditions. Thank तो you. learner terms and conditions होते हैं, ये एनविरॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के हैं। जब आप किसी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो कोर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मालूम होना चाहिए, और उस हिसाब से जो है आप आगे बढ़े। तो जैसे कपिल सर बता रहे थे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एनविरॉन्स लर्नर टर्म्स एंड कंडीशंस governs the services provided by Environ as well as limits its liability towards the learners. By enrolling onto a course with Environ Consulting Private Limited, you are deemed to have accepted terms and conditions outlined in this document. The scope of learner terms and conditions. These conditions govern your relationship with Environ Consulting and the awarding body and will come into force immediately when you apply for any registration or enrollment. Mr. Ashutosh, this timing would be informed to you 7 days before the date of the examination. If you are prepared for the examination, accordingly you have to do the registration. If you are not prepared for the examination, then I would suggest you not to register for the exam, because once you register for the examination fees applies. मतलब आपने कोर्स फीस में जो एग्जामिनेशन फीस दिया है वो एग्जामिनेशन फीस पेमेंट होता है।
तो एग्जाम के दिन जो है, अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं या मिस कर रहे हैं एग्जाम को, तो वो आपका एब्सेंट आ जाता है। और फिर जब आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए फिर से आपको एग्जामिनेशन फीस देना होता है और फिर एग्जाम देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया फिर उस दिन मेरा कुछ काम आ जा रहा है या फिर वैसा कुछ रह रहा है तो एग्जाम ना देने से चल जाएगा, वैसा नहीं है सर। जिस डेट पर एग्जाम है उसी डेट पर आपको एग्जाम देना ही है, विदाउट मिस सर। सर यू आर गुड। Okay, sorry. For the avoidance of any doubt, awarding bodies responsible for the awarding bodies are not responsible for the provision of training, training facilities, training materials, and other services that have been promised to you by the learning partner of निबोश। तो जैसे कि एनविरॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड सिल्वर लर्निंग पार्टनर है निबोश के, तो निबोश आईजीसी का आपका ये जो कोर्स का ट्रेनिंग रहेगा, उसके फैसिलिटीज, ट्रेनिंग मटेरियल्स हुआ, या फिर निबोश आईजीसी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे तरफ से, वो निबोश डायरेक्टली आपको प्रोवाइड नहीं करता है। निबोश हमारे अक्रेडिटेशन को रेगुलेट करता है या फिर लर्निंग पार्टनर को वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड डिस्कशंस रहेगा या फिर जो भी क्वेरीज, डाउट्स या कंप्लेंट्स रहेंगे वो आपको एनविरॉन को करना होगा। Pursuant to the above clause, these conditions set out the basic obligations of Environ Consulting Private Limited towards you and your obligations and responsibilities, which include but are not limited to fees and payments. तो यहाँ पे जैसे कि आप एक कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमारे भी कुछ ऑब्लिगेशंस आपके तरफ रहेंगे और आपके भी कुछ ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे तरफ रहेंगे। तो वो सब क्या है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। When you enroll for a course with Environ Consulting Private Limited, a binding contract for the selected course is created. The awarding body is not a party to this contract. तो जब आप एनविरॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को कोर्स फीस पे करते हैं तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है आपके बीच और एनविरॉन के बीच। और यहाँ पे जैसे कि अवार्डिंग बॉडी निबोश निबोश है, तो यहाँ पे निबोश का कोई रोल नहीं रहता है। हाँ, उनके कुछ पॉलिसीज रहते हैं, तो वो जो होता है एनविरॉन को रेगुलेट करने के लिए। अगर एनविरॉन के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो आप निबोश के पास जरूर उसको डाल सकते हैं। बट वो कंप्लेंट जो है अगर निबोश के पॉलिसीज के हिसाब से है, तो उस हिसाब से वो लर्निंग पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन लेगा। अदरवाइज अगर जो कंप्लेंट आपका है वो एनविरॉन के पॉलिसीज के हिसाब से है, तो निबोश आपको डायरेक्टली कहेगा कि आप एनविरॉन के पॉलिसीज के हिसाब से आप अपना कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। The employees or agents of Environ Consulting Private Limited are not authorized to make any representations concerning the services unless confirmed by us in writing. तो जैसे कि एग्जाम्पल बेसिस पर जो फ्लायर्स हम पोस्ट करते हैं या जो ब्रोशर्स आपको हम शेयर करते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो हमारे डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होते हैं तो वो आपको प्रोवाइड किए नहीं जाएंगे। अगर वैसा कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन आपको हो रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें सो दैट उसको हम इन्वेस्टिगेट करके रोक पाए और जो वैलिड चीजें हैं या वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको प्रोवाइड कर पाए। Mr. Dababrata Bhadra, when we are going to get the study materials, will they be in soft copy or hard copy? Sir, study materials would be available online on Google Classroom. So that would be our online platform where you will be getting all the study materials, additional resources, recordings of the classes, and the assessments would also be uploaded there, where you would be downloading the questions, so writing your answers, and uploading them on the Google Classroom for review, sir. Thank you. Any
typing error, clerical or other error or omissions in any sales literature, quotation, price list, acceptance of invoice or other document or information issued by Environ Consulting shall be subject to correction without any liability on its part. तो जो भी एरर्स आपको नजर आते हैं या फिर अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार क्लेरिकल मिस या टाइपिंग एरर नजर आता है तो उसके लिए एनविरॉन लाइबल रहेगा नहीं, बट यस वी कैन करेक्ट इट, इट वुड बी सब्जेक्ट टू करेक्शन। तो यहाँ पे जो भी चीजें होती है वो वर्जन कंट्रोल होती है। सो वट एवर डॉक्यूमेंट्स, कोटेशंस, प्राइस लिस्ट या फिर जो भी लिटरेचर होता है, अगर कहीं पे आपको गलती नजर आती है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, वी वुड बी रेक्टिफाइंग दैट मिस्टेक। Where any hardware or software supplied under the agreement is subject to any statutory controls, including controls imposed by the state of origin of the hardware or software। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, तो हमारे तरफ से अगर कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपको यूज करने के लिए दिया जा रहा है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उसको एथिकल चीजों में यूज करेंगे, जैसे कि आपके कोर्स के कंप्लीशन के लिए आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो गूगल क्लासरूम है, जूम क्लासरूम का लिंक है, तो इन सब चीजों को जो है प्रॉपरली आप यूज करेंगे और इन चीजों के साथ छेड़खानी ना कर मतलब कोई किसी तरीके का छेड़खानी आप इसमें नहीं कर रहे, उसको इंश्योर करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर आईपीआर पॉलिसी हमारा होता है। Enrolling for a qualification. By enrolling for a qualification with Environ Consulting, whether you apply directly or whether a third party applies on your behalf, you accept these conditions. You shall be responsible to us for ensuring the accuracy of the terms of any application submitted by you with sufficient time to enable us to perform the services in accordance with the contract and these terms and conditions. Your enrollment with Environ Consulting will only be effective if and when Environ Consulting sends to you its official payment receipt along with the confirmation mail. In case you have registered with us for a course through the installment process, then the receipts of the amount paid in installment would be sent to you as a reply to the confirmation mail sent. You are expected to provide a copy of your national ID, that would be Aadhaar card, PAN card, passport or driving license to Environ Consulting within 3 days of enrollment. If this hasn't been received within the 3 days, Environ Consulting will temporarily suspend your access to its services until and unless the respective ID has been received from your side. So I hope the learners that have already registered and have joined this meeting, they must have successfully submitted their ID proofs and ID verification must have also been done, sir. The learners that have registered, can you please confirm this has been done or not? Yes, sir, done. Yes, sir. Already done. Yeah. So as I was mentioning about the ID verification section, you also need to attend an ID verification session that would be organized by Environ Consulting Private Limited before the commencement of the course. When That enroll, also completed. sir? That also has been completed. Okay, that's great. When enrolling for a qualification with us, you are agreeing to abide by the regulations for that qualification as set out by the awarding bodies to that qualification. Payment policy. So Environ Consulting Private Limited fees are subject to the Indian currency of Indian rupees. Any reference to fees includes a reference to the Indian rupees. Environ Consulting Private Limited course fees include 65 hours of class training, study material fees, and examination, registration, and sitting fees. So as Arpit was explaining, we charge for the tutorials, study materials, and exam registration. So all including all three components, the overall course fees has been disclosed to you by your respective course coordinators.
Sir, the Zoom link would be shared to you through your confirmation mail. So it would be having a registration link. So once you register for that, a confirmation mail would be sent to your email address. So from that email ID, you can regularly join the class. From that confirmation email, you'll be getting an option mentioned there, join now. So you just have to open that mail, click on join now, and you can accordingly join the class. So as we were discussing about the payment policy, you can make the payment of the course fees in full or installments as well. If you are opting for the installment facility, then you would be able to pay the course fees in 3 installments. The first installment would be treated as the booking amount, which is non-refundable, and the rest of the offered price of Environ can be paid in 2 continuing installments. Any learner joining for the courses offered through company sponsorship needs to ensure that the complete course fees along with applicable GST is cleared so that the learner can appear for the main examination of the qualification being pursued. For example, if a learner is pursuing NIBOSH IGC on the expense of the company, so in that case, the company needs to clear the course fees along with GST in advance so that the learner can be registered for the main examination. Mr. Ajit, we would request you to speak with your respective course coordinators because our standard price, as mentioned in our brochure, was 50,000 and current offer price is 45,000 inclusive of GST. So 45,000 is the total fees of NIBOSH IGC currently. Okay, we'll be moving on to the next point. Any learner joining for the courses offered through company sponsorship. Okay, this point was completed. You may also be liable for further additional fees which may not be set out in your contract with Environ Consulting Private Limited or the awarding body. These additional fees may be for services that you may avail to qualify the course selected, which is optional. So ये जो additional fees होता है, जैसे कि suppose for example किसी learner का English उतना अच्छा नहीं है, तो English improvement के लिए वो कुछ करना चाहता है Environ के थ्रू, तो उस केस में हम उनको कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश या फिर रिटन इंग्लिश के क्लासेस सजेस्ट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है या फिर हो सकता है वो चार्जेबल भी हो सकता है। तो ये जो एडिशनल फीस है वो उसी को मतलब ठहराता है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो वो आपको खुद अपने हाथों से करना होगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उसके जो कोर्स फीस होता है वो आपको खुद जो है बियर करना पड़ता है। एनविरॉन इसमें बियर नहीं करेगी। Charges made by your bank or authorized credit provider for the payment of your fees are completely your responsibility and must be paid by you. तो यहाँ पे बेसिकली बैंक का चार्जेस कहाँ पे आता है, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो हमारा जो है 3 टाइप के जो है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो ये इंस्टा मोजो के थ्रू होता है। तो जब हम इंस्टा मोजो के थ्रू पेमेंट करते हैं तो इंस्टा मोजो जो है जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 10,000 या 15,000 आपका बुकिंग अमाउंट या रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है। तो अगर आप इंस्टा मोजो से पेमेंट करते हैं तो उसमें 2-3 मतलब 1-2 हजार जो है इंस्टा मोजो चार्जेस डालती है। तो हमें जो है 10,000 या 15,000 आता है, जो एक्स्ट्रा 1,000 या 2,000 चार्जेस रहता है वो इंस्टा मोजो लेता है, वो हमारे पास नहीं आता है। तो ये चीज मैं पहले से क्लियर कर देना चाहूंगा, जो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं इंस्टा मोजो यूज करके, तो ये एक छोटी सी दिक्कत है। अदरवाइज यू कैन यूज योर नॉर्मल नेट बैंकिंग या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं कोर्स के लिए।
Payments accepted include payments made through cash, UPI payment, credit, debit card and bank transfer. कैश जो है अगर आप इंस्टीट्यूट डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं तो उस केस में आप कैश पेमेंट कर सकते हैं. Can we pay the payment online for extra? सर फॉर एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट क्लासेस हम कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं. जैसे कि अपित सर बता रहे थे, मैं भी यहीं पे बताना चाहूंगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए. आप अगर रीसीट कर रहे हैं, ठीक है ना सर, तो भी आपको क्लासेस की फीस देने नहीं है. क्लासेस आपका जो है इनिशियल टाइम पे क्लास का फीस लिया जाता है जब आप कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं. उसके बाद आप रीटेक देना चाहते हैं और अगर आपके दिमाग में कुछ है नहीं या फिर आप भूल गए हैं और आप एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उस केस में एक्स्ट्रा क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट आपका जो नॉलेज है वो रिवैम्प हो पाए और जब आप एग्जाम रीटेक का एग्जाम दे रहे हैं और फोकस्ड होके एग्जाम दे और उसको सेकेंड अटेम्प्ट में ही निकाल पाए सर. तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफर टू द लर्नर्स. यूपीआई, फोन पे, गूगल पे नंबर है ये वाला. बैंक ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे. जस्ट अ मोमेंट. For payment through credit card, debit card, you can use InstaMojo. जैसे कि मैं बता रहा था, all exam fees paid would expire if the learner registered with Environ Consulting Private Limited does not appear for the main examination within the next 12 months. Please ensure your chosen exam date falls within your agreed enrollment access period. तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको 1 साल के भीतर No, sir. Once you have registered, attempted the examination, failed, and you want to attend the classes again, there would be no extra charges for that. So जैसे कि मैं बता रहा था, 12 महीनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करने के 12 महीनों के भीतर आपको एग्जाम देना है. अगर नहीं देते तो वो एक्सपायर कर जाता है और फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है. Students who have an outstanding balance owing to Environ Consulting Private Limited are not permitted to book or register for the main examinations. तो ये जो लाइन है ये उन लोगों के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो कि फॉर एग्जांपल बुकिंग अमाउंट दे देते हैं और उसके बाद टाइमली इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स नहीं करते, तो उनका जो है अमाउंट बाकी रहते हुए एग्जाम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है. वो किसी भी हालत में नहीं होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली निबोश उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपने एग्जाम का फीस का पेमेंट किया हुआ नहीं है. तो किस प्रकार आपका एग्जाम रजिस्ट्रेशन हम करेंगे या फिर निबोश करेगा, तो वो पॉसिबल होता नहीं है. Environ Consulting Private Limited may refuse an application for a payment plan without reason. तो आप सपोज हमारा जो 3 इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है उसको चेंज करके आप 5 या 6 इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हैं, तो उस केस में वो एनविरॉन का कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो आपके पेमेंट प्लान को एक्सेप्ट करे, मतलब सजेशन फॉर पेमेंट प्लान को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो कंप्लीट उसका रहता है. और वो रिजेक्ट भी कर सकता है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन. Your course advisor will intimate your payment plan prior to the commencement of your qualification through the confirmation mail that is shared with you upon your successful registration with Environ Consulting Private Limited. This should be kept confidential and you also need to maintain the confidentiality of the same and agree not to disclose the offered course fees to anybody without our prior permission. तो जिसको भी जो भी कोर्स फीस ऑफर किया गया है वो अपने कोर्स एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिस्कस विथ ईच अदर और डिस्क्लोज ईच अदर. ये टर्म्स एंड कंडीशंस में हमारा रहता है. तो जो भी कोर्स फीस आपको बताया गया है वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही है, तो ये आप किसी को रिवील ना करें, वो आप अपने तक ही रखें. Failure to maintain your agreed payment will result in your course access being suspended. Should your course access be suspended, your account will accrue INR 500 plus applicable GST per month admin charges. तो इन केस अगर आप अपना कोर्स फीस इंस्टॉलमेंट फीस जो है दे नहीं पा रहे, तो उस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड होता है
और 500 प्लस 18% GST भी उस पर एडमिन चार्जेस लगते हैं सर। ठीक है, तो इंश्योर कीजिए कि आपका एक्सेस या फिर जो अकाउंट है एनविरॉन के साथ वो एक्सपायर ना हो और या फिर सस्पेंड ना हो किसी भी कारण के लिए। ठीक है, यू ऑल नीड टू इंश्योर दिस। Refund policy. You can cancel your registration prior to 15 days from the proposed start date of the course. Request for refunds must be made in writing to sandeep@environ.in. No refunds will be offered to you after the start of the class. No refunds will be offered to you if any of our course material has been accessed or downloaded by you. Classroom courses must be taken within 1 year from the deposit being paid. If the classroom course has not been taken in this period, the course will be cancelled and the deposited amount will not be refunded in any case. तो ये क्लासरूम के लिए था। अगर आप फिजिकली विजिट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट और वहां से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उस केस में वो लागू होता है। यू विल हैव एक्सेस टू ई लर्निंग कोर्स मटेरियल just a moment, 365 days from the date of enrollment. For virtual classes, it would be for 90 days from the commencement of classes. And for face-to-face delivery, access provided to course material is 120 days from the day of enrollment. तो ये सब जो है वेरियस फॉर्मेट्स में आपको अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि जो LMS रहता है या ई लर्निंग रहता है वो 1 साल के लिए आपके पास अवेलेबल रहता है डेट ऑफ एनरोलमेंट से। वर्चुअल क्लासेस जो है 90 दिन तक, मतलब अभी जो निबोश IGC का क्लासेस आप अटेंड करेंगे 8 तारीख से, वो 90 दिन तक उसका रिकॉर्डिंग जो है आपके पास रिकॉर्डिंग हुआ या फिर स्टडी मटेरियल्स हुआ 90 दिन तक या 3 महीने तक आपके पास अवेलेबल रहते हैं। Any fees incurred by Environ Consulting, including but not limited to registrations and examinations, will be deducted from any refunds offered. तो जैसे कि मैं एग्जाम फीस के रिगार्डिंग बता रहा था, एनी फीस इनकर्ड बाय एनविरॉन कंसल्टिंग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रजिस्ट्रेशंस एंड एग्जामिनेशंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी रिफंड्स ऑफर्ड। तो आपके बिहाफ पर अगर हमने कुछ एक्सपेंस किया हुआ है या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी अगर इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं तो उनके चार्जेस जो है डिडक्ट होते हैं आपके रिफंडेड अमाउंट से। डेफरमेंट पॉलिसी, तो किसी को डेफरमेंट के रिगार्डिंग कुछ मालूम है? डेफरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? हेलो No, sir. जी, तो डेफरमेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 8 No, नवंबर sir. Voice is not audible, sir. For example, I am joining for Nibosh IGC class in the upcoming 8th November batch. Fine. So I attended 4 to 5 classes and after that I was not able to attend any of the classes. Let it be due to personal reason, let it be due to work pressure or whatever the reason may be. So, but you want to complete the course but at a later period of time. So in those cases, you need to inform your course advisor, inform Environ Consulting Private Limited about the deferment or the reason for deferment. आप किस वजह से लेटर ऑन कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं वो रीजन लिख के आपको मेल करना होता है और डेफरमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालना होता है। तो आपका जो डेफरमेंट रिक्वेस्ट होता है वो मेल में होना चाहिए और वो anupam@environ.in पर होना चाहिए। सो दैट डेफरमेंट का जो अप्रूवल है वो डायरेक्टर से इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से मिल पाए और उस हिसाब से जो डेफर्ड डेट या डेफर्ड मंथ आप सिलेक्ट किए होंगे फिर से क्लासेस करने के लिए, उस हिसाब से आपको उस डेफर्ड बैच में अकोमोडेट हम कर पाए। असेसमेंट्स एंड रीजनेबल एडजस्टमेंट्स, तो रीजनेबल एडजस्टमेंट क्या है? रीजनेबल एडजस्टमेंट्स आर अग्रीड टू बिफोर एन असेसमेंट टेक्स प्लेस। द इक्वालिटी एक्ट 2010 requires NIBOSH to make reasonable adjustments where a candidate who is disabled would be at a substantial disadvantage in comparison to someone who is not disabled. तो यहाँ पे जो है ये रीजनेबल एडजस्टमेंट क्या होता है कि कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड रहते हैं या मेंटली डिसेबल्ड रहते हैं। कुछ कुछ लर्नर्स होते हैं जो कि विजुअलाइज करके अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। कुछ लर्नर्स ऑडियो के थ्रू समझ पाते हैं।
कुछ लर्नर्स प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने पर समझ पाते हैं। तो इन सभी लर्नर्स के रिक्वायरमेंट्स को हम अकोमोडेट करने के लिए रीजनेबल एडजस्टमेंट्स करते हैं। और ये जो रीजनेबल एडजस्टमेंट्स है वो आपके ट्रेनिंग डिलीवरी में होता है, सो दैट सभी लर्नर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल रेस्पेक्ट मिले और इक्वल गाइडेंस मिले। A reasonable adjustment may be unique to one individual, and what is appropriate for one individual may not be suitable for another individual. जो चीज़ थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, तो सभी के लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को मीट करने के लिए रीजनेबल एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। तो रीजनेबल एडजस्टमेंट्स करवाने के लिए अगर आपका वैसा कोई डिसेबिलिटी है या फिर कोई इश्यूज है, तो आप ट्यूटर को ओपनली इन्फॉर्म करें इंडिविजुअल लर्निंग प्लान बनने के टाइम, सो दैट उस हिसाब से ट्यूटर जो है ट्यूटरिंग सेशंस में रीजनेबल एडजस्टमेंट्स कर पाए। रजिस्ट्रेशन फॉर निबोश असेसमेंट्स, तो जो IG1 और IG2 है वो किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द अप्रोप्रिएट एग्जामिनेशन डेट एंड वेन्यू. Environ Consulting cannot be held responsible for mistakes in exam registration. Environ Consulting assessment closing dates are set independently of the awarded body, of the awarding body. For assessment registrations received after Environ Consulting closing date, Environ Consulting reserves the right to refuse acceptance of your application. तो यहाँ पे जो है असेसमेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर निबोश असेसमेंट, तो फॉर एग्जांपल दिसंबर में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड रहता है वो नवंबर 15 से नवंबर 20 के भीतर रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ जो भी एग्जाम डेट रहेगा उसके प्रीवियस मंथ के 15 तारीख से 20 तारीख के भीतर आपको अपना ड्यूज क्लियर करके एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, और वंस आपका जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट होता है जो कि 20 तारीख होता है, 20 तारीख अगर क्रॉस कर जाता है उसके बाद आपका एग्जाम रजिस्ट्रेशन और हो नहीं सकता है। वंस द लास्ट डेट फॉर एग्जाम रजिस्ट्रेशन हैज पास्ड, इट इज नॉट पॉसिबल to help you out with the exam registration. Where Environ Consulting accepts late assessment registrations, and additional charge will apply. तो अगर आप फिर भी लेट असेसमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट उसके लिए चार्जेस लग सकते हैं। यू हैव द राइट टू अप्लाई फॉर रीजनेबल एडजस्टमेंट शुड यू फील you will be at a disadvantage during your assessment. तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि आप डिसएडवांटेज में रह सकते हैं तो उस केस में आप रीजनेबल एडजस्टमेंट के लिए अपने कोर्स एडवाइजर्स को, ट्यूटर को और लर्निंग पार्टनर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, सो दैट वो लोग जो है निबोश को रिक्वेस्ट कर पाए रीजनेबल एडजस्टमेंट के लिए व्हेन यू appear for the main examination. Your application for reasonable adjustment must be accompanied by substantiated evidence of your disadvantage. Your application for reasonable adjustment must be sent to email info@environ.in. Also, the request must be received by Environ Consulting prior to your selected examination. Additional charges may be incurred by you for the implementation of reasonable adjustments. जो भी reasonable adjustments है उसमें अगर कुछ costs involved है तो उसको जो है learner को ही भरना होता है। Refund of fees will be made in respect of cancelled registrations only where corroborated by a medical certificate or doctor's note relating to the inability of the candidate to sit the examination due to illness. तो अगर सपोज एग्जाम के दिन अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है या फिर कोई सीवियर इंजरी होता है या फिर वैसा कोई इलनेस आ जाता है जिस वजह से आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, तो सच केसेस में क्या होता है कि एग्जामिनेशन फी या एग्जाम बैठने का जो फी होता है उसका 40% जो है कवर होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और आपको 60% का रिफंड मिलता है। जो भी एग्जामिनेशन फीस आपने भरा हुआ है उसका 60% जो है आपको रिफंड मिलता है, बाकी जो 40% रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कवर करने के लिए निबोश जो है डिडक्ट करती है।
Refunds will not be made in respect of any additional costs incurred by the candidate. All claims for refunds must be made no later than 1 calendar month following the examinations. तो आपको अगर कुछ अपील करना है तो 1 महीने के भीतर वो आपको करना है. Fees and registrations are not transferable to alternative examinations or later examination sittings or between candidates. तो आप अगर अपना एग्जाम फीस किसी के साथ स्वैप करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, या फिर आप किसी और मतलब सपोज निबोश आईजीसी में फेल हो गया और वो अमाउंट आप अल्टरनेटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूज करना चाहते हैं वो पॉसिबल होता नहीं है. Limitations of liability for Environ Consulting Private Limited. तो जो भी डेटा आपने प्रोवाइड किया है वो अगर गुम हो जाता है या करप्ट हो जाता है या फिर लॉस होता है किसी तरीके का, तो उसके लिए एनविरॉन जो है जिम्मेदार नहीं रहेगी. Any damage or loss to property unless triggered by the neglect of Environ Consulting Private Limited or its employees. Any loss of profit or loss of earnings, loss of opportunity or loss of living expenses, or any other indirect or consequential loss suffered by you due to the breach by Environ Consulting of any obligation to you or due to any other act or omission or negligence of Environ Consulting or its employees or agents whether in contact or trot. तो ये चीजें अगर होती है तो एनविरॉन जो है विल लुक इनटू इट एंड अकॉर्डिंगली प्रोवाइड यू विद द बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन अवेलेबल. Termination. Environ Consulting may terminate your enrollment or registration at any time by written notice in the event of any of the following. You breach any of these conditions or any other terms and conditions contained in any letter confirming your enrollment or in any documents or policies issued by Environ Consulting or the awarding body at any time. You fail to pay fees due to Environ Consulting Private Limited. You have given any false or misleading information to Environ Consulting whether directly or indirectly through a third party or otherwise. You do not meet all of the administrative or academic requirements specified in the guides issued by the awarding body. Any of the instances set out in the below clause occur or you are involved in any malpractice pursuant to the awarding body's malpractice policy. Complaints procedure. If you have a complaint relating to any aspect of your course, please raise a complaint with Environ Consulting Private Limited by emailing on complaint@environ.in or filling up the online complaint form that would be shared with you in the common WhatsApp group once you join or register with us. Should you require a copy of Environ Consulting complaints procedure, please make a request by email to anirudh@environ.in. Nibosh complaints. If you remain dissatisfied with our response, you can escalate your complaint to Nibosh by writing a mail to info@nibosh.org.uk or by writing a physical letter to this address. So that's the end of the slide. I would like to add a small point to this. So attendance policy and the assessment policy, as Apit sir was informing, you need to maintain 100% attendance in the class because when your exam registration is being done, Nibosh asks for the attendance of the registered learners. For example, if you people are registering for the December examination, in December, Nibosh should be asking for the details of the learners that are being registered for the December month. For example, they would be asking for the attendance of the registered learners, the assessments or formative assessments they have submitted, and the mock test that they have submitted. So all these three things need to be available for each and every learner if we are registering them for the examination. If you have not attempted all the classes, if you have not submitted formative assessments, and you have not attempted the mock test, then there is no chance you'll be getting registered for the main examination.
So on completion of these three things, your exam registration would be done. Otherwise, it would not be done as per the policies of NIBOSH, policies and instructions of NIBOSH. Yes. So that would be all. If you guys have any questions, you can ask me. Otherwise, I would be winding up the session. Any questions from any learners? Sir, repeated to No, sir. registration policy. Madhavan? You want Sir, to know registration policy. you want to know about the what you can say the enrollment process, Mr. Chandan Kumar? Yes, sir. Yes, sir. You want to know about the enrollment process, sir? Yes, sir. Process. Yeah. ID verification, but enrollment Like verification. you have already registered with us, right, sir? Hello. You have registered with us already, right, sir? Yes, sir. Yes. So you must have filled the applicant details form. You have co-signed the learner agreement. Have you done them? Yes. No. So that is the enrollment process only. After going through the learner handbook, knowing about the course, the duration and all the details, you need to make the payment for the course. And once you make the payment, a confirmation mail would be sent to you, and the respective forms that have been made for documenting your registration, you need to fill those forms. And once those forms have been furnished, you would be provided with a pre-course guidance session, and we would also be providing a learner orientation program on the 7th of November itself. So the registered learners, they would be provided a orientation to NIBOSH IGC. You would be explained how to use Google Classroom. You would be provided a demonstration of where you can access the study materials, class recordings, and other things. Okay, so till then I would request you to wait. So any other questions you can ask, or I shall wind up the session. Any more questions from any other learner? No, sir. Yes, sir. Yes, Mr. Dababrata. No, I said I don't have any more queries. So I will ask whenever the session start. I think you'll be starting on 8th, right? At the Yeah. same timing, 8th. Yes. Okay. Yes. Thank you. The orientation program would be there at I think it's 8 p.m. 8 p.m. on the 7th of November. So you'll be getting mail regarding the same, and I will be sharing the mail to you. So rest assured. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for that. Thank you so much for joining this session. I hope you have a great evening ahead. Good night to all. Good night, sir. Thank you.